Hello everyone, I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. In this particular lecture, which is Electrostatics lecture 14, you will learn about the expression of electric field due to a given uniformly charged spherical shell. This is the third application of the Gauss theorem, and we will calculate the expression of that electric field at three different points. The first point outside the shell, second point on surface of shell, and third point inside this shell. Okay, so we derive these expression and then we perform a numerical example from the CBSE previous year paper related to the same topic. But before starting this lecture, I would like to revise the contents of the previous lecture, which is the expression of electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet, and the expression of electric field at particular point P was E is equals to sigma upon 2 epsilon naught m cap, where the sigma is surface charge density of that given sheet and epsilon naught is permittivity of the medium in which the sheet is placed and point P is situated. Okay, so the main point was that electric field is not depends on the distance r from that plane sheet. ओके एंड इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमने कैलकुलेट कैसे किया था यूजिंग द गॉस थ्योरम, जहां हमने पहले नेट फ्लक्स कैलकुलेट किया, उसका एक्सप्रेशन था 2 टाइम्स ऑफ ई ए, फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड एक गाउसियन सरफेस के साथ एसोसिएटेड, और वो गाउसियन सरफेस कौन सी थी? सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हमने वहां पर कंसीडर की. देन वी कैलकुलेटेड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर spherical surface, and that was sigma times of A, and then we substitute both the values of flux and the total charge in the Gauss theorem statement, and we evaluate and calculate the expression of electric field. So the n cap in the expression of electric field, the n cap was the unit vector perpendicular to the direction, perpendicular to that particular sheet. It is perpendicular outward if the sheet is positively charged and perpendicular inward if sheet is negatively charged. So now we start the third application, which is electric field due to a uniformly charged spherical shell. Okay, so suppose if this is the spherical shell which is uniformly charged, ये metal की हो सकती है और most of the cases में हम metal की लेते हैं या conductors की लेते हैं, क्योंकि conductor पर जो भी charge हम provide करते हैं वो उस particular surface पर uniformly distributed हो जाता है. और ये जो sheet है ये भी बहुत ही थिन शीट हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हम मान लो कोई पी पॉइंट आउटसाइड लेते हैं तो हमें गाउसियन सरफेस चाहिए होती है. जब भी हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं तो वी ड्रॉ गाउसियन सरफेस, और गाउसियन सरफेस में मैंने एग्जांपल बताया था, अगर हमारे पास जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है या किसी स्फीयर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इन दैट सिचुएशन वी एज्यूम द गाउसियन सरफेस स्फेरिकल. Okay, so here also we are discussing, we will consider the Gaussian surface spherical. So suppose this is the particular shell on which the uniform charge is distributed. Suppose that amount of charge is q and the surface charge density for this particular surface is sigma. Clear? It means the total charge per unit area. ओके, हियर ऑल्सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वी विल नॉट कंसिडर, क्योंकि ये चार्ज जो है वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट इट इज ओनली ऑन द सरफेस. तो यहाँ भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एंड विच इज सिग्मा. क्लियर? और थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं इट इज द प्लस सिग्मा. ओके, सो नाउ दिस रेडियस ऑफ दिस गिवन स्फेरिकल शेल इज कैपिटल आर. Okay, capital R is the radius of given spherical shell. So we are considering 3 points. The first point A outside this shell, which is outside the shell. The second point B on surface of shell, or we can say just outside the shell. Okay, shell के थोड़ा सा बाहर. Okay, which is very close to the shell. And the third point C we are taking in this particular point, and which is C point, and here at point A, B and C, इन तीनों ही पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है. क्लियर? एक है आउटसाइड द शेल, एक ऑन द सरफेस ऑफ शेल, एंड थर्ड वन इज एट इनसाइड दिस पर्टिकुलर शेल. तो जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो हमने कंसिडर की है, दिस इज द गाउसियन सरफेस, दिस इज गाउसियन surface.
स्फेरिकल है ये, क्योंकि हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट इसको सिमेट्रिक लिया जाता है। क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेते हैं, ओके, और उस स्मॉल सरफेस एलिमेंट से एसोसिएटेड फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर फ्लक्स को इंटीग्रेट करके हम टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, एंड देन जब टोटल फ्लक्स आ जाएगा तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करके गॉस थ्योरम में उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यही स्टेप हम यहाँ भी यूज लेने वाले हैं। नाउ सपोज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो हम स्फेरिकल शेल ले रहे हैं वो कुछ इस तरह की, सॉरी, जो सरफेस एलिमेंट हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द सरफेस एलिमेंट एंड दिस सरफेस एलिमेंट इज ds। क्लियर? ये जो सरफेस एलिमेंट हमने वहां पर लिया दैट इज ds। इस सरफेस एलिमेंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को और ds की डायरेक्शन को देखें तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ओके। तो दीज टू आर पैरेलल, E vector and this ds vector, or we can say ds cap, ओके। अब ds क्यों है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि हमने पहले से ही एज्यूम कर रखा है कि हमेशा हम क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों परपेंडिकुलर आउटवर्ड है इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने वायर और शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया, वैसे मैं इसको ऐसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं कि सपोज ये हमारे पास में एक पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे सरफेस एलिमेंट्स यहां अगर कंसीडर करें इस पर्टिकुलर शेल पर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड करना है और हमने बहुत सारे ऐसे सरफेस एलिमेंट्स कंसीडर किए इस पर्टिकुलर शेल पर, तो सिचुएशन में क्या होगा कि एक एक अगर आप स्फेरिकल जो सरफेस एलिमेंट है, सॉरी स्मॉल सरफेस एलिमेंट जो सर्कुलर है, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करोगे तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, लेकिन उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ये कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी इस शेल के पैरेलल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू दिस शेल है या परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर एरिया है वो सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर समझना इसको कि अगर हम सपोज करो ऐसे, जैसे मैंने एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट यहाँ बनाया हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारे सरफेस एलिमेंट एक सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग बनाऊं, और यहाँ मान लो उसकी एक्सिस के अलोंग, उसी सर्कल के बड़े वाले सर्कल के एक्सिस के अलोंग मेरे पास कोई पॉइंट P है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, सारे सरफेस एलिमेंट्स के कारण यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होंगे। क्लियर? इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर टू दिस शेल, वो क्या होगा, या एक्सिस के अलोंग, वो तो होगा ऐड, और जो इस वर्टिकल डायरेक्शन में है या जो इस शेल के पैरेलल डायरेक्शन में है वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इक्वल और अपोजिट होने के कारण। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो शेल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगा। क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमें डायग्रामेटिकली प्रूव नहीं करना क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इवन बुक्स में भी नहीं मिलेगा आपको। तो इन दिस सिचुएशन E वेक्टर एंड ds वेक्टर विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे इस ds सरफेस एलिमेंट के रिगार्डिंग, वो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1 आएगी क्योंकि theta will be 0 degree. So before starting we introduce this diagram. Let us consider a spherical shell of radius r, capital R, and surface charge density सिग्मा। ओके, फर्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट A. Okay, the A is outside point, so electric field at outside point A we are considering. We draw a Gaussian spherical surface। ये जो हम Gaussian surface कंसिडर कर रहे हैं ये भी कैसी है, स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं है,
टू डायमेंशनल डायग्राम है इसलिए आपको ये 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये स्फीयर्स है, और जिसको मैंने डैश लाइन से ड्रॉ किया है वो गाउसियन सरफेस है। क्लियर? और ये जो सॉलिड लाइन से सर्कल मैंने ड्रॉ किया ये स्फीयर है और कंडक्टिंग शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है। क्लियर? सो वी ड्रॉ गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। सपोज देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस हम लेने वाले हैं, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट O से A की जो डिस्टेंस है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो जो आउटसाइड पॉइंट है वो इस शेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है। क्लियर? सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r बेसिकली। क्लियर? तो एट द रेडियस, और उसी स्मॉल r डिस्टेंस के स्फीयर को हमें गाउसियन सरफेस कंसीडर करना है। क्लियर? तो दिस इज द रेडियस स्मॉल r वेयर point A situated at distance small r from center of shell, that is OA is also equals to r। तो जो ये रेडियस है उस पर्टिकुलर गाउसियन सरफेस की वही डिस्टेंस होनी चाहिए आउटसाइड पॉइंट ए की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। क्लियर? सो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस एलिमेंट ds, ठीक है, ये गाउसियन जो सरफेस है हमारे पास, इसमें हमने जो सरफेस एलिमेंट ds लिया है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स को हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो फ्लक्स क्या होगा? दैट विल बी डी फाई। अगर मैं स्मॉल स्फेरिकल फ्लक्स की बात करूं तो डी फाई क्या हो जाएगा? दिस विल बी उस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज ई डॉट डी एस। अगर मुझे पूरे स्फीयर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चाहिए हो, जो ये स्फेरिकल सरफेस है गाउसियन सरफेस, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स अगर मुझे चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज, वो कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये आएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये स्फीयर जो बनेगा दैट इज अ क्लोज सरफेस जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और उसके अबाउट हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये फ्लक्स किसके साथ एसोसिएटेड हो गया? पॉइंट ए के अबाउट जो स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए। अब यहाँ ई और डी एस क्या है? दोनों पैरेलल है। हम यहाँ पे भी इसके साथ लिख सकते हैं, इट इज सिंपली ई डी एस कॉस 0 डिग्री, बिकॉज ई इज पैरेलल टू डी एस एंड इट इज सिंपली ई डी एस। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंस वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर डी एस। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एलिमेंट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इन दिस सिचुएशन cos 0 will be 1, so it is simply EDS. So this is integral EDS. अब अगेन इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये इस गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होगा, क्योंकि टोटल जो चार्ज इस सेल पर है वो सेम है, और जो रेडियस है इस पर्टिकुलर स्फीयर के हर पॉइंट की या डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल, और अगर ये मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन। सो दिस विल बी सिंपली इंटीग्रल ds टाइम्स ऑफ e और e टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ds। नाउ व्हाट विल बी दिस इंटीग्रल ds? जो हमने गाउसियन सरफेस कंसीडर की, उस गाउसियन सरफेस के छोटे छोटे जितने भी सरफेस एलिमेंट्स हैं उन सभी सरफेस एलिमेंट्स का सम वही इंटीग्रल ds को रिप्रेजेंट करता है। तो वो टोटल किसे रिप्रेजेंट करेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर।
ओके उसी स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया को बताएगा। तो अगर r रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया लिखना हो तो वो क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो इन दिस इक्वेशन दिस एक्सप्रेशन विल बी E into 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल। तो जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए था वो हमें मिल गया इस पर्टिकुलर पॉइंट ए की रिगार्डिंग। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड क्या है हमारा पर्पस, टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है और उन दोनों एक्सप्रेशंस को पुट करना है इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट। ओके सो एक बार नोट करो यहां तक। Now if sigma is surface charge density, then what will be the total charge enclosed by this particular spherical shell? तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा। अब देखो चार्ज कहां पर है, चार्ज केवल इस स्फेरिकल शेल के ऊपर है। अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगा मेरे पास में, अगर मैं सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता हूं, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय Gaussian surface is ये कितना होगा। देखो टोटल चार्ज अगर हम कहें इफ इट इज Q तो चार्ज इनटू टोटल एरिया हम कह सकते हैं, चार्ज इनटू टोटल एरिया बिकॉज सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल एरिया। सिग्मा क्या होता है, देखो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो what will be charge? Charge is sigma into area. तो it is sigma into area of sphere जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल शेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसीलिए यहां पर इसका जो एरिया हम लिखेंगे, चार्ज ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। इस पॉइंट को समझना कि हमें जो टोटल चार्ज अगर हम Q से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया जो आएगा यहाँ R रेडियस के स्फीयर का आएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज इस शेल पर या जो ये हमारे पास में गॉसियन सरफेस हमने ली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एरिया कितना होगा स्फीयर का, इट विल बी 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर आएगा। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जहां हमने सिग्मा क्यू इन लिख लिया। ये जो है एक तरह से ये सिग्मा क्यू इन हम इसको कह सकते हैं, जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस है, और उसको हम कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये फाइनल एक्सप्रेशन जो लिखेंगे उसको सिग्मा की टर्म में भी लिखेंगे और इस कैपिटल Q की टर्म में भी लिखने वाले हैं, इसीलिए। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जहां सिग्मा क्यू इन फाइंड किया हमने, और दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन इसमें हमने इक्वेशन जिसमें हमने फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया। नाउ द अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम the electric flux phi E will be equals to sigma q n upon epsilon naught. This is the expression of the electric flux. So sigma q n upon epsilon naught, substituting the values of flux phi E and charge sigma q in the expression. So using equations 1 and 2, जो 1 और 2 इक्वेशंस हैं उसको अगर हम यूज लें then we will get the phi E is E into 4 pi small r square. This is the expression of phi E. And second, sigma q in sigma into 4 pi capital R square and divided by epsilon naught. Okay, so this is E 4 pi R square. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे then 4 pi will cancel out and R स्क्वायर को अगर इधर शिफ्ट कर दें तो E का एक्सप्रेशन क्या होगा, इट विल बी सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। ओके, और अगर हम इसकी डायरेक्शन लिखें तो डायरेक्शन के अलोंग इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो दैट विल बी r कैप
and r cap is unit vector perpendicular outward for positive sigma. Clear? So r cap is what? R cap is unit vector perpendicular outward to given shell. जो हमारे पास गिवन शेल है उस गिवन शेल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये यूनिट वेक्टर है आर कैप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो एक तो एक्सप्रेशन ये है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. अगर हमें इसको चार्ज की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ओके, तो इस सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन 4πr². ओके, टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज कितना लिया हमने? कैपिटल Q. टोटल सरफेस एरिया कितना है? 4πr². तो उसी से सिग्मा आ जाएगा. तो यूजिंग इक्वेशन 2 अगेन, ये हमने नोट कर लिया था पहले. यूजिंग इक्वेशन 2 अगेन, what will we find? Look, sigma is Q upon 4πε0 r². So E will be what? It is sigma की जगह क्या आ जाएगा? Q upon 4π capital R². 4π capital R² and remaining term as it is लिख देता हूँ R² upon ε0 small r² r cap. यही आएगा. अब देखो यहाँ पर R² से R² कैंसिल हो गया और इस 1/4πε0 को स्मॉल k भी लिख सकते हैं हम. तो इट इज सिंपली E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 विच इज k, और एक बार मैं यही लिख देता हूं 1/4πε0 Q अपॉन R² r कैप. लुक, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका था? एक पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही आता है. तो यहां भी हम इस पूरे की पूरी शेल को, एक के चार्ज को, इवन शेल के चार्ज को हम इस सेंटर पॉइंट O पर कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं. ओके, इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो यहाँ O पॉइंट पर रहेगा. क्लियर? तो सेंटर ऑफ चार्ज कंसेप्ट की सिचुएशन यहाँ एज्यूम की जा सकती है. जैसे तुम्हें याद हो तो हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड पॉइंट पर, कोई मास है उसके ऊपर, तो उस पूरे बॉडी का जो मास है वो हम उसके सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं. क्लियर? जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं. वैसे ही यहाँ ये सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आ रहा है. मैंने ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वहां भी सेंटर ऑफ चार्ज की बात की थी कि डाइपोल्स कैसे वो फॉर्म करते हैं. तो यहाँ भी हम उस सेंटर ऑफ चार्ज को यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट O पर ले सकते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये पॉइंट चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. और ये एक्सप्रेशन यहाँ इस चीज को प्रूव करेगा कि वी कैन एज्यूम दिस होल चार्ज ऑफ द शेल ऑन इट्स सेंटर. Okay, which is center point O. So this is the expression of electric field in terms of sigma and in terms of the total charge. So note down this particular thing. Now we calculate the expression of electric field on surface of this given shell. यानी कि r रेडियस का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो इस बार क्या होगा, ये जो हमारी स्फेरिकल सरफेस है या शेल है, ये शेल खुद ही गॉसियन सरफेस एज्यूम की जा सकती है. क्लियर? और हम एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट उसी सरफेस पर ले सकते हैं. तो जब हम सरफेस पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, या इसको हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस की बात हो रही है. यानी एक पॉइंट जो वेरी वेरी क्लोज टू दिस सरफेस है, वहां हम एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उस सिचुएशन में उस डिस्टेंस को हम नियरली कैपिटल R लिख सकते हैं. तो उस सिचुएशन में अगर मैंने सपोज करो यहां पर एक सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया, क्लियर, ये सर्कुलर अगर सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट B पर, दिस इज आल्सो हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड ds वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. क्लियर? तो हमें यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे. तो E डॉट ds में E ds cos 0 ही रहेगा और इंटीग्रल ds क्या आएगा? 4π कैपिटल R².
क्लियर? तो इसको जल्दी से करते, वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट केस इसका डिस्कस किया था, बस इस बार क्या होगा कि जो सरफेस एरिया आएगा वो पहले था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इस बार होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर कैपिटल आर से यहाँ रिप्लेस करके हम डायरेक्ट उसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। क्लियर? बट हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सेकेंड केस यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन surface of sphere, surface of spherical shell, ओके? स्फेरिकल शेल की सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ओके? सो नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू द शेल कितना आएगा? टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो phi will be integral of E dot ds. Clear? Again E and ds are having the same direction, they are parallel to each other, so it can be written as integral E ds cos 0, or it is simply integral E ds, and E can be taken out क्योंकि हर पॉइंट पर डिस्टेंस कैपिटल R सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, so it will be E इंटीग्रल ds। अब यहाँ ये इंटीग्रल ds क्या होगा? उस शेल का टोटल सरफेस एरिया, ओके? शेल का टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो इट विल बी E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ओके? इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, केवल स्मॉल r कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करके, मैं आगे पॉइंट बता दूंगा उसको, फर्स्ट केस के को यूज लेते हुए। सो इन दिस सिचुएशन दिस इज द एक्सप्रेशन, इक्वेशन 1, द टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस को ही हम गाउसियन सरफेस ले रहे हैं, ध्यान रखना, शेल की जो सरफेस है, तो सिग्मा क्यू इन विच इज सपोज कैपिटल Q, and this will be equals to what? Same sigma into 4 pi r square। इस बार भी वही चार्ज तो उसी शेल के ऊपर है, तो चार्ज into area of that shell equals to the total charge, sorry surface charge density into area of the shell will be equals to total charge। so this is the equation 2। now put the value in the Gauss theorem। तो using Gauss theorem, using Gauss theorem, phi equals to, Gauss theorem का अगर स्टेटमेंट लिखें, phi equals to sigma q in upon epsilon naught, so this will be sigma q in is E into 4 pi r square, and sorry phi is E into 4 pi r square, and sigma q in is sigma into 4 pi r square divided by epsilon naught। so look here, 4 pi r square will cancel out, clear? and the expression of electric field is simply sigma upon epsilon naught, okay? it is sigma upon epsilon naught। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? अदर वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना हो तो इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r cap, where r cap is perpendicular to the given shell, ओके? तो परपेंडिकुलर आउट या परपेंडिकुलर इन वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज सिंपल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। रिमेंबर जो पिछले लेक्चर में हमने शीट की बात की थी वहां एक्सप्रेशन आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके? और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने अभी तो इसको शेल के लिए डिस्कस किया है, लेकिन मैं आगे एक और एग्जांपल कराऊंगा जिसमें किसी भी तरह की आर्बिटरी हमारे पास सरफेस हो जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके हर पॉइंट पर यानी उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको हम अदर सरफेस के लिए भी करेंगे, बट रिमेंबर हमें ये जो एक्सप्रेशन मिला है ये ऑन द सरफेस ऑफ दैट शेल है, क्लियर? तो इन दिस सिचुएशन हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट फर्स्ट केस से भी डिराइव कर सकते थे। ऑल्टरनेटिव इसका जो वे है करने का, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां हमने कितना लिखा था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ओके? फ्रॉम केस फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन था।
हियर इस सिचुएशन में क्या होगा, स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R। डायरेक्ट लिख सकते हैं स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी इस बार, a पॉइंट अगर सरफेस पर आ जाए तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल। तो ये अगर एक्सप्रेशन यहाँ डायरेक्ट रख दोगे तो r स्क्वायर कैंसिल होके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r कैप। इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास टाइम कम है इसको भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। या so this is the expression of the electric field on surface of the shell. So note down this one. Now we will calculate the expression of the electric field inside this given spherical shell. तो सपोज यहाँ इसके इनसाइड में कोई हमने पॉइंट कंसिडर किया C, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो उस सिचुएशन में हम वहां उस C जो O से डिस्टेंस रखती है, सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r1। ये जो डिस्टेंस हम यहाँ ले रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r1। इस डिस्टेंस पर अगेन हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। तो दिस इज ऑल्सो द गॉसियन सरफेस। ओके, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया देखो ये भी गॉसियन सरफेस है, और ये जो स्फेरिकल शेल है इसको भी हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। ये पॉइंट C के लिए कंसिडर किया, ये पॉइंट B के लिए, एंड दिस इज फॉर पॉइंट A। तो ये तीनों ही स्फेरिकल शेल है जो यहाँ 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए, क्लियर, अलग अलग पॉइंट से अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट ऑन दिस गिवन स्फेरिकल सरफेस जो हमारे गॉसियन सरफेस है। इस सरफेस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं और सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ds जो है वो भी सेम डायरेक्शन में। तीनों ही पॉइंट पर देखो, चाहे पॉइंट A है, चाहे पॉइंट B है, दिस पॉइंट B, एंड चाहे पॉइंट ये C हो। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को C ले रहा हूं सपोज, clear? So at this particular point C, also the E and ds are parallel to each other. तो थर्ड केस अगर हम लिखें इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल शेल। ओके, यानी पॉइंट C पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर C पॉइंट पर अगर हम लिखेंगे, देन सबसे पहले फाई E, टोटल फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड, वो कितना होगा, इंटीग्रल E डॉट ds, अगेन बोथ आर पैरेलल, तो इट इज इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री। और अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें इंटीग्रल E ds सिंपल, और E इसमें भी हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि E इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ओके, सो दिस E विल बी E इंटीग्रल ds। ओके, सिंपली यही आएगा। सो इन दिस सिचुएशन इंटीग्रल ds विल बी व्हाट, r1 अगर उसकी रेडियस है तो इट इज E टाइम्स ऑफ 4 पाई r1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे जरूरी नहीं होगा इसको लिखना क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आने वाली है, बट वो कैसे आएगी उसको हम सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। तो इस तरह से एक लाइन में इस फ्लक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बट इन दिस सिचुएशन अगर हम सिग्मा क्यू इन की बात करें, ओके, सिग्मा क्यू इन क्या होता है, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज इनसाइड दिस पर्टिकुलर सरफेस, या चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस को हम सिग्मा क्यू इन बोलते हैं। तो यहां देखो जो सरफेस है गॉसियन सरफेस वो ये वाली है r1 रेडियस की, क्लियर, ये डिस्टेंस r1 है, दिस डिस्टेंस। तो और चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस शेल के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर सरफेस के इनसाइड चार्ज 0 है। जैसे अगर मैं इससे बताऊं तो चार्ज कहाँ है, देखो इस सरफेस के ऊपर है। अगर मैं कोई इसके अंदर भी एक स्फीयर कंसीडर करूं तो उस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, इस सिचुएशन में सिग्मा क्यू इन की वैल्यू 0 आएगी। देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस ऑफ रेडियस r1।
ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस r1। ठीक है, r1 रेडियस यहाँ कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करता, r1 रेडियस का स्फीयर। तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 कहें और यूजिंग गॉस थ्योरम फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू क्या है, ई टाइम्स ऑफ 4 पाई r1 स्क्वायर, और सिग्मा क्यू इन क्या है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। ये 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो इन दिस सिचुएशन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दिस विल बी अ नल वेक्टर। ओके, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस, उस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ गया। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमें समझ में आ जाए कि क्यू इन 0 होने से ई 0 कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इस तरह से हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट करें, फिर टोटल चार्ज कैलकुलेट करें, गॉस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट करें और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 शो कर दें। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कर्व ड्रॉ करना हो r के रेस्पेक्ट में, स्मॉल r कोई डिस्टेंस है उसके रिगार्डिंग अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है, तीनों ही केसेस को ध्यान में रखते हुए, क्लियर। सपोज दिस इज द स्मॉल r, ये डिस्टेंस जो है ये स्मॉल r है x एक्सिस पर, और यहां हमने एक्सप्रेशन लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E वर्सेस R अगर हम ड्रॉ करें एंड सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ दिस शेल कैपिटल R, ये इसका सेंटर है, ठीक है, O पॉइंट जो है ये सेंटर है शेल का, R रेडियस है शेल की, और स्मॉल r कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हम इनसाइड द शेल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर r डिस्टेंस से जस्ट पहले तक 0 आएगा। फिर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो वो वैसे अगर हम इसको ले r की वैल्यू, तो इसका कर्व जो है वो किस तरह से चेंज होगा, इट दिस विल बी लाइक दिस, 1 अपॉन r का वेरिएशन इसमें आएगा। क्लियर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसको हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वहां पर सरफेस पर मिला था। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो सरफेस पर किया, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सरफेस पर लिखा वो क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अगर मैं यहां भी सिग्मा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q लिखूं, तो कैपिटल Q की टर्म में ये क्या होगा, सिग्मा, इट विल बी कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ये आएगा। ओके, चेक करना है इसको, इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी उसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो के कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर आर कैप। यानी वही आपको क्या करना है, जो सेकेंड एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट केस का फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें भी कैपिटल स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना है। ओके, यानी इस केस में भी जब हम जस्ट आउटसाइड द सरफेस हैं उस शेल की, उस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड को या टोटल चार्ज को हम सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर, तो इन दिस सिचुएशन ये जो एक्सप्रेशन है ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, या इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। रिमेंबर, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखी जा सकती है, और इसका वेरिएशन जो आ रहा है ये 1 अपॉन आर स्क्वायर का वेरिएशन है, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर की तरह ये वेरी होता है। तो ये कर्व ध्यान रखना 0 रहेगा और फिर इस पर्टिकुलर पाथ को ये फॉलो करेगा। Okay, so remember this curve also and note down this third case. Now we are going to discuss a particular example regarding the topic. इस particular example में हमारे पास में एक spherical shell है, क्लियर।
इस शेल की जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस है वो हमें गिवन है कि सपोज दिस इज r1 एंड दिस आउटर रेडियस इज r2. ओके, एक प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज हमने आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इस पर्टिकुलर शेल के सेंटर पर है. ओके, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज इज एट सेंटर ऑफ दिस शेल एंड आउटर सरफेस जो है इसकी, उस पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्लस क्यू है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्लस क्यू चार्ज. ओके, तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है. फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी at point या at inner and outer surface, at inner and outer surface of shell. ओके, एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है. सेकेंड थिंग जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, दिस पॉइंट P1, P2 एंड P3. ओके, और सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, P2 एंड P3. ओके, और इस तरह का हमारे पास में एक डायग्राम गिवन है. सपोज डायग्राम को भी लैंग्वेज में वहां पर दिया जा सकता है. तो इस सिचुएशन में सबसे पहले देखो, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है सेंटर पे, जो कि प्लस स्मॉल क्यू है. ये चार्ज क्या, ये मेटालिक स्फीयर है या मेटालिक शेल है. ठीक है, ये कंडक्टिंग या मेटल शेल है वी कैन से. ओके, ये मेटल से बनी हुई है. तो मेटल में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग कि वो फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ द मेटल मूव कर सकते हैं. तो इन दिस केस क्या होगा कि ये जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे. ओके, और अट्रैक्ट होंगे तो उस सिचुएशन में यहां पर इसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नेगेटिव होगा. और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नेगेटिव, माइनस क्यू. ओके, जितना इसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का, उतना ही चार्ज यहाँ यूनिफॉर्मली इससे अट्रैक्ट होगा ताकि वो इक्वेट बैलेंस करे. तो यहाँ इसकी इनर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, माइनस क्यू चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर शेल. और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इसकी आउटर साइड पर उतना ही चार्ज की डेफिशिएंसी होगी. जितना माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पर आया, उतना ही अपोजिट चार्ज यानी उतने ही चार्ज की वहां डेफिशिएंसी होगी. और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज. तो एक्चुअल में क्या होगा, इस आउटर सरफेस पर जो टोटल चार्ज इस इनर चार्ज के इंड्यूस्ड होने के कारण जो मिलेगा वो प्लस क्यू होगा. तो टोटल चार्ज अगर हम सरफेस पर बात करें तो वो प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, यानी दोनों चार्जेस का सम मिलेगा. ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो चार्ज उतना ही है, प्लस क्यू और प्लस क्यू जो सेंटर पे और आउटर सरफेस पर है. बट इस सेंटर पे जो चार्ज है उसके कारण इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ माइनस स्मॉल क्यू, और उतना ही चार्ज की डेफिशिएंसी आउटर सरफेस पर हुई, तो उसको हम प्लस क्यू चार्ज कहते हैं. क्लियर. तो अगर हम इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखें या चार्जेस के वैल्यू को, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इसकी लिखते हैं, द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर एंड आउटर सरफेस आर, कितना होगा, इनर पे माइनस क्यू एंड आउटर पर प्लस क्यू रेस्पेक्टिवली. तो टोटल चार्ज इनर सरफेस पर कितना आ गया, माइनस क्यू, और टोटल चार्ज आउटर सरफेस पर क्यू प्लस स्मॉल क्यू. ओके, सो द टोटल चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस आउटर सरफेसेस आर, यहां भी सरफेसेस कर लो, कितना होगा, माइनस क्यू एंड क्यू प्लस क्यू रेस्पेक्टिवली. क्लियर.
अब आपको रेडियस गिवन है इनर और आउटर सरफेस की r1 r2, तो चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं. ओके, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो फर्स्ट फॉर इनर सरफेस कितनी होगी, इनर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा इन. अगर मैं इसको लिखता हूं तो टोटल चार्ज इज व्हाट माइनस क्यू, और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर है, r1 रेडियस है स्मॉल r1, तो सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई r1 स्क्वायर. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड का एग्जांपल है, सीबीएसई में इसको पूछा गया है. सिमिलरली अगर हम आउटर सरफेस की बात करें, आउटर सरफेस, तो फॉर दिस सपोज इट इज सिग्मा आउट, तो चार्ज कितना है Q प्लस क्यू. ओके, तो टोटल चार्ज इज Q प्लस क्यू एंड डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है देखो उसकी r2, तो 4 पाई r2 स्क्वायर उसका सरफेस एरिया हो जाएगा. तो दिस विल बी अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर. So these are the expressions of the surface charge density at inside and outside surface. Clear? Now second point इसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम थिन स्फेरिकल शेल अगर कंसीडर करें तो P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये जो देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू का तो इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल चार्ज इस सेल पर कितना रहा क्यू प्लस क्यू, और इस चार्ज को मैं सेंटर पर एज्यूम कर सकता हूं KQ बाय आर स्क्वायर से लिख सकते हैं इसके एक्सप्रेशन को. तो डायरेक्ट में यहाँ इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स, फर्स्ट लेते हैं P1 और सपोज कर लेते हैं कि ये P1 जो है इस पर्टिकुलर सेंटर से x1 डिस्टेंस पर है. P1 पॉइंट सेंटर से x1 डिस्टेंस पर है, तो एट पॉइंट P1 इधर लिख लेते हैं. ओके, सो एट पॉइंट P1 द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E1 इज इक्वल्स टू K विच इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q कितना है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, टोटल चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर शेल. ओके, ये दोनों चार्जेस का इफेक्ट कैंसिल आउट करेगा और ये टोटल चार्ज जो रहेगा वो Q प्लस स्मॉल Q रहेगा. या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर पहले गिवन था वो कैपिटल Q था, अंदर कैपिटल स्मॉल Q है, तो टोटल चार्ज इनसाइड दैट स्फेरिकल सरफेस, गाउसियन सरफेस अगर यहाँ आप कंसिडर करो इस x1 रेडियस के स्फीयर को, तो सिचुएशन में टोटल चार्ज अंदर कितना है स्मॉल q और कैपिटल Q. ओके, तो टोटल चार्ज KQ अपॉन r स्क्वायर, r कितना है यहाँ x1 स्क्वायर आ जाएगा. डायरेक्शन की बात करोगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है ये चार्ज. क्लियर? तो r कैप की डायरेक्शन अगर शो करनी हो तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r कैप, और वी कैन से E1 भी इसको लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट P1. क्लियर? सिमिलरली सेकेंड पॉइंट की बात करें P2 एट पॉइंट P2. नाउ लुक हियर, यहाँ P2 पॉइंट जो गिवन है ये इस शेल के इनर और आउटर रेडियस के बीच में, यानी R1 और R2 इसको अगर मैं डिस्टेंस x2 लेता हूं, ठीक है, अगर ये पॉइंट O है तो OP2 यहाँ पर अगर x2 है, समझना इस पॉइंट को, OP2 अगर यहाँ x2 है तो इस x2 की वैल्यू R1 से ग्रेटर है लेकिन R2 से लेस है. ठीक है, R1 से तो ये ग्रेटर है, R1 से बड़ा है ये वाली डिस्टेंस, और R2 से ये डिस्टेंस कम है, यानी पॉइंट P जो है ना वो इनर और आउटर सरफेस के इन बिटवीन है कहीं. इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां अगर गाउसियन सरफेस आप कंसीडर करोगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, जीरो हो जाएगा. समझ रहा, अगर मैं यहाँ एक गाउसियन सरफेस मिडल में शेल के सेंटर में कंसीडर करता हूं तो टोटल चार्ज कितना हुआ माइनस क्यू और प्लस क्यू, जीरो हो गया टोटल चार्ज. तो टोटल चार्ज इस सिचुएशन में जीरो है. ठीक है, सिग्मा क्यू इन अगर यहाँ लिखोगे तो क्यू माइनस क्यू जीरो आएगा, और जब टोटल चार्ज ही जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आता है. अभी हमने थर्ड केस किया था.
Clear? तो in this situation the electric field at the second point will be 0. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी. क्लियर? थर्ड पॉइंट लेते हैं इस पर्टिकुलर P3 पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं x3 है. ठीक है, तो एट P3 और OP3 की वैल्यू हमारे पास में x3 है. तो उस सिचुएशन में एक पॉइंट चार्ज से x3 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k स्मॉल q अपॉन x3 स्क्वायर. सिंपल है. ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना है, ये तो वही केस हो गया, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू दिया हुआ है और आपको किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा. तो यहाँ पर इस E3 की जो वैल्यू आएगी दैट इज सिंपली k q अपॉन x3 स्क्वायर. ओके, और साथ में r कैप यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह से हमने P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और P3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को नोट कर दिया. क्लियर? कैलकुलेट किया. अगर ये P2 पॉइंट आउटर सरफेस पर होता तो KQ बाय R, KQ प्लस Q बाय R2 स्क्वायर आता. ठीक है, R2 ये डिस्टेंस है. तो ध्यान रखना कि ये पॉइंट्स जो आपको गिवन है P1, P2, P3, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. ओके, सो नोट डाउन दिस पर्टिकुलर thing. नाउ आई एम सम अप दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इस लेक्चर में हमने थर्ड एप्लीकेशन गॉस लॉ की जिसमें हमारे पास में एक स्फेरिकल शेल थी जिस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसके आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैलकुलेट किया. और उसके लिए हमने गॉसियन सरफेसेस कंसिडर की जो इटसेल्फ स्फेरिकल थी, और उन गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स फाइंड किया, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस फाइंड किया और उसको गॉस थ्योरम में सब्स्टिट्यूट कर दी उन वैल्यूज को. तो हमें जो एक्सप्रेशंस मिले किसी आउटसाइड पॉइंट जो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, वहां सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था. परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसमें सिग्मा को अगर हम टोटल चार्ज Q की टर्म में अगर लिखे हैं तो वो KQ बाय R स्क्वायर का ही एक्सप्रेशन मिलता है. यानी इस सिचुएशन में हम इस पूरे चार्ज को जो सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सेल के सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ चार्ज नाम देते हैं. क्लियर? इसी तरह से अगर सरफेस पर हम आए, सेकंड केस जो लिया, और सरफेस पर स्मॉल r को कैपिटल R अगर हम कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r कैप आता है, और उसी को हम KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, फिर थर्ड हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल. इनसाइड द शेल की बात करें तो इनसाइड द शेल अगर आप गॉसियन सरफेस लेते हो तो उसके अंदर कुछ चार्ज होता ही नहीं, और जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगा. जिस रीजन में चार्ज नहीं हो या जिस स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड चार्ज जीरो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आता है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम. उन तीनों केसेस में हमने फ्लक्स को अलग से कैलकुलेट किया, टोटल चार्ज अलग से कैलकुलेट किया और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया यूजिंग द गॉस थ्योरम. ओके, फिर हमने एक एग्जांपल किया कि हमारे पास में एक गिवन शेल है, उसकी इनर आउटर रेडियस आपको गिवन है, और उस शेल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को P1, P2, P3 पॉइंट पर और सरफेस चार्ज डेंसिटीज हमें कैलकुलेट करनी थी. तो कैसे चार्ज इंड्यूस्ड होता है एक पर्टिकुलर गिवन शेल के अंदर, उस इंड्यूस्ड होने वाले कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समझा कि प्लस Q चार्ज अगर सेंटर में है तो वो माइनस Q चार्ज इनर सरफेस पर इंड्यूस करेगा, और उतना ही चार्ज की डेफिशिएंसी आउटर सरफेस पर होगी तो वहां जो टोटल चार्ज आएगा वो प्लस Q प्लस स्मॉल q रह जाएगा. ओके, तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर 14 को यहाँ पर डिस्कस किया. अब जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा वहां हम ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो चुका है, थियोरेटिकल जो सिलेबस अपना बोर्ड CBSE ने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. बट कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं उसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट 15th लेक्चर जो मेरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वहां मैं डील करूंगा. ओके, सो एनी डाउट, एनी क्वेरी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स नहीं कर पा रहे, तो उनसे मेरा यही सजेशन है कि आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं. कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं. क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थैंक यू.